begin? We are going to talk about objectives of business in today's lecture. Before I proceed, let me tell you few things. Okay, कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको. अभी जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, listen to it very very carefully. I am going to talk about objectives of business. ठीक है. हमने इससे पहले जो भी डिस्कशन किया था, that discussion was appropriately based on something which is called characteristics. Okay? That business was based on something which is called characteristics. अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, we are going to talk about something called objectives. Okay, let me make you understand the theme of the topic first of all. Okay, now when we talk about the word called characteristics, characteristics basically means the features of any business. Okay, characteristics basically means the feature of any business. मतलब कोई भी बिजनेस होता है तो उसके क्या फीचर्स होते हैं. जैसे कि आप देखोगे बिजनेस में तो प्रॉफिट एक फीचर होता है, यूटिलिटी एक फीचर होता है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एक फीचर होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी एक फीचर होता है, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस एक्टिविटी एक फीचर होता है, ठीक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी एक फीचर होता है. ओके, देन वी आर हैविंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक फीचर होता है. सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एक फीचर होता है. सो वी हैव समवेयर अराउंड लाइक 7 फीचर्स that we have talked about in the last lecture. ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया in terms of something which is referred as characteristics of business, which is referred as something called characteristics of business. ध्यान से सुनना, characteristics of business 5 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस 5 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में. बट सर दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस क्या है? ओके, now let me make it very clear for you. Whenever I am saying the word objective, मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? Can anybody tell me? Can anybody tell me? Aim of business. ठीक है, मैं आपको बोलूं एक चीज, why are we doing business is nothing but the objective of business. Okay, let me ask somebody something. Okay, let me ask somebody something. Be ready to answer. I'm not going to ask any hard thing at this point of time. Okay, let me ask somebody something. Okay, yes, Mr. Manthan. ठीक है, मंथन रोरा. ओके, मंथन, Yes, sir. अगर सपोज हम आपको ऐसा बोले दैट यू आर गिवन अ चांस टू स्टार्ट अ बिजनेस, एंड इन दैट बिजनेस, ओके, you are going to do a business of selling garments, branded clothes. Okay, can you tell me why you will do that business? For survival and profit. For profit. Okay, for profit. आपने ये जो आंसर दिया ना, ये पता है क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? सर मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट. आपने ही बोला, यू हैव ओनली टोल्ड व्हाई यू आर डूइंग बिजनेस, बिकॉज यू वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट. व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. आप क्यों कर रहे हो बिजनेस, उसको आप बोलते हो ऑब्जेक्टिव. सो वेन एवर यू गिव आंसर टू द क्वेश्चन, whenever you give answer to the question why, whenever you give answer to the question why, that is basically referred as objectives of business. ठीक है, अब मैं आपको ये चीज पूछ रहा हूं, listen to it very carefully. ध्यान से सुनिए everybody, just pay 100% attention over here. just pay 100% attention over here. जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको एक चीज पूछ रहा हूं, वो ये पूछ रहा हूं सर के आपने बेसिकली ये मेरे को बोला कि व्हाई यू आर डूइंग बिजनेस. ठीक है कि सर आई वांट टू अर्न प्रॉफिट. एनीबडी इज हैविंग
any other answer? Anybody is having any? For livelihood. For livelihood, okay, you earn profit, you earn livelihood, right? You are able to survive. Whatever he said, he also said that same, that for survival, for livelihood. Yes, please. Anything else? Anybody else? Anything else? मैं बोलूं? आपने बोला सर प्रॉफिट, आई वुड ऑल्सो एग्री टू दैट आई वुड ऑल्सो डू प्रॉफिट, बट आई डोंट वांट टू अर्न जस्ट प्रॉफिट, आई वांट टू क्रिएट माय ब्रांड नेम। मेरे को मेरे बिजनेस का एक ब्रांड नेम भी क्रिएट करना है। यानी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर ओनली प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, देन यू आर थिंकिंग इट टोटली रॉन्ग। प्रॉफिट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स विच आर देयर एज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। अंडरस्टैंड दैट। प्रॉफिट तो एक बहुत छोटा चीज है, मैं आपको बताता हूं। इट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग। प्रॉफिट आपको बताऊं, ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज है। बाकी बहुत कुछ ऐसा होता है जो बहुत लॉन्ग टर्म होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो पैसे कमाने से रिलेटेड नहीं होता है, बट तो भी वो बिजनेस में एक इंपैक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग। एक कंपनी है जिसका नाम है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, द नेम ऑफ द कंपनी इज मामा अर्थ। आपने नाम सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? Yes. Yes, राइट। sir. मेनी ऑफ द मतलब Yes, sir. अगर आप बेसिकली यूट्यूब या ये सब कुछ आप यूज करते हैं तो यू मस्ट हैव सीन दैट के बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मामा अर्थ का ये अभी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, देखिए मित्रों मैं ये लगा रहा हूँ और मैं कितना गोरा दिखता हूँ, ठीक है, अगर आप भी ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, मोतीलाल 005, ऐसा कुछ कूपन कोड दिया होता है, ठीक है, देन यू कैन बाय द प्रोडक्ट। द मेन थिंग इज whatever they make, whether they make organic product, non-organic product, paraben free product, we are not interested. What I am interested in is कि when they sell something to somebody, okay, जब ये किसी को कुछ बेचते हैं, the money that is been received is been used for plantation of trees, is been used for plantation purpose, that is basically referred as afforestation program, इसको यही बोलते हैं। अब जितना भी पैसा आप दोगे, मतलब लेट्स से यू हैव पुट इन 800 रुपीज का ऑर्डर, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, और वो 800 रुपए में से वो लोग, दे विल नॉट द होल अमाउंट ऑफ मनी बट सम पार्ट ऑफ मनी दे विल यूज फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। उनका ये प्लान है दैट मामा अर्थ इज गोइंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज और प्लांट्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। अब मेरे को एक चीज बोलो, अगर सपोज तुम मामा अर्थ एज अ कंपनी हो और तुम लोगों को ऐसा बोल रहे हो कि योर प्लान इज टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज, इज टू प्लांट 1 मिलियन प्लांट्स इन होल ऑफ इंडिया, क्या तुम ऐसा बोलोगे इट इज योर ऑब्जेक्टिव? यस और नो? क्या तुम ऐसा बोलोगे इट इज योर ऑब्जेक्टिव? यस और नो? Yes, sir. यस ऑब्वियसली तुम बोलोगे ना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। लोगों के दिमाग में क्या होता है, सर बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज प्रॉफिट, दैट इज टोटली रॉन्ग। अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी है। प्रॉफिट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, देयर आर मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स। इसलिए आप अब से ऐसा याद रखेंगे that whenever we talk about the word called objectives, whenever we talk about the word called objectives, जब हम objectives की बात करते हैं, मतलब पर्पस की बात करते हैं, ये बेसिकली दो तरीके का होता है। ये बेसिकली दो तरीके का होता है। ये आपके बिजनेस में दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे सब, एवरीबडी जस्ट पे 100% अटेंशन ओवर हियर, ओके। So the first thing, the first objective is basically referred as, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बिना आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड दैट।
इसके बिना आपका बिजनेस चल नहीं सकता, अंडरस्टैंड दैट, ओके। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली रेफर्ड एज, जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज प्राइमरी हो गया, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, ओके, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, ओके। यानी एक चीज आपको समझ पड़ना चाहिए, अब जब मैं ये सेकेंडरी और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के हेडिंग्स लिखूंगा तब आपको पता चलेगा, ओके सर इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझा देता हूं, प्रॉफिट, तुम लोग मेरे को बताओ, चलो लेट्स डू दिस, प्रॉफिट ये तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है? बिजनेस की बात कर रहे Primary. Primary. हैं, इट इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, राइट, इट इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई दूसरा वो चीज तो है ही नहीं, क्योंकि भाई तुम बिजनेस कर रहे हो तो एक ही मेन पर्पज से बिजनेस कर रहे हो, यू वांट टू अर्न प्रॉफिट, इट इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ओके। यानी मैं आपको बोलूं, कोई भी बिजनेस के दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैं यहाँ पे अदर्स वाली कैटेगरी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेन हेड्स लिख रहा हूं, ठीक है। वन विच इज रेफर्ड एज अ प्रॉफिट, ओके, वन विच इज रेफर्ड एज वेल्थ क्रिएशन। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। लोगों को क्या लगता है, सर वेल्थ मतलब प्रॉफिट, इट इज नॉट, इट इज नॉट, अंडरस्टैंड दैट। यानी कोई भी बिजनेस देखोगे तो उसके दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, बिजनेस, सर मैं आपको बताऊं एक बिजनेस, ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग सर है ना पहले यानी फूड ग्रेन से सब खरीदते हैं, फिर उसका खाना बनाते, फिर उसको पैकेट में पैक करते और लोगों को जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। सो डोंट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। द आइडिया इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, अंडरस्टैंड दैट, any economic activity which is legal and which is done for earning profit is called business। ये तीन चीज फुलफिल होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए होना चाहिए और ये लीगल होना चाहिए, तभी जाके वो बिजनेस होगा। मतलब अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल सोच रहे हो जिसमें प्रॉफिट नहीं है, देन इट इज नॉट अ बिजनेस, ओके, कीप दैट थिंग असाइड। चलिए, अब बिजनेस के कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, बिजनेस के कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। मैं आपको बता देता हूं हमारे पास कितने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है, लेट मी टेल यू वन बाय वन, ओके। अभी तो हम चार रख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड, लेट मी राइट डाउन द फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट वर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फर्स्ट वर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, या हम ऐसा लिख देते, फर्स्ट बोलो सेकंड बोलो लास्ट बोलो, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, नाम याद करना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैं ऐसा लिख देता हूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एक सेकंड, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एंड लास्ट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोल रहा हूं, ये वर्ड कैसे करके याद करेंगे आप लोग, विच इज द वे इन विच यू विल रिमेंबर दिस, इसको याद करने का भी एक तरीका है, ठीक है। आई विल गिव यू अ वर्ड विच विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सेम, बोलो क्या डिस्कस करें वैसे करके, आई विल गिव यू अ वर्ड विच विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सेम। चाहिए आप लोग को वैसा कोई वर्ड जिससे आपको याद रह जाए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो लेट्स डू Yes, दैट, sir. लेट्स ओके, लेट्स डू दैट। मैं आपको वर्ड दे देता हूं, द वर्ड इज वेरी सिंपल। यहां पे जो वर्ड आप याद रखेंगे, ये पूरे के पूरे लिए आप वर्ड क्या याद रखेंगे, पासवर्ड इज गेट्स। अब ऐसा वर्ड याद रखो, पासवर्ड इज गेट्स, पीडब्ल्यू मतलब पासवर्ड, आप लोग ऐसे बोलते होंगे, आप लोग जब मैसेज में टाइप करते हो, सर व्हाट इज माय पीडब्ल्यू, अरे मैं एक बार सोच रहा पीडब्ल्यू बोलो तो क्या होता है,
फिर पता चला अच्छा ही इज आस्किंग फॉर पासवर्ड, बहुत सुंदर। तो PW मतलब पासवर्ड, क्या है पासवर्ड? गेट्स। अब ये सर गेट्स कैसे हुआ, ठीक है, देखिए गुड्स, ओके, एम्प्लॉयमेंट, ओके, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, दीज आर द वर्ड्स दैट यू शुड रिमेंबर। देखो सीधी सी बात है, दीज आर द वेज इन विच यू कैन लर्न द थिंग्स फास्ट। बिकॉज अगर आपको पूरा का पूरा आंसर आता हो, समझो एक चीज, अगर आपको पूरा का पूरा आंसर आता हो बट अगर आपको इसका हेडिंग नहीं आता, अगर सपोज ये 5 मार्क में पूछे और अगर आपने पूरा का पूरा आंसर लिखा बट अपने हेडिंग्स नहीं लिखे सही से, तो यू विल नॉट गेट मोर देन 2.5 और मैक्स 3, उससे ज्यादा आपको मार्क्स मिल नहीं सकता है। यहाँ पे हेडिंग का बहुत वैल्यू है, यहाँ पे हेडिंग का बहुत वैल्यू है, ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। वी विल टॉक अबाउट दिस। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई विल टेल यू टू रीड दिस, टू लर्न दिस एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। 30 सेकेंड्स, नॉट मच टाइम, फटाफट फटाफट सोच लीजिए क्या होना चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं, प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव 4 होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, दीज आर द पर्पस। अब ऐसा हो सकता है सर, आप एक चीज बिफोर बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सर ये मेरे बिजनेस के लिए हर एक कोई एप्लीकेबल है, ऐसा जरूरी है? नो, इट इज नॉट एट ऑल। हो सकता है कि आपके बिजनेस के लिए सिर्फ प्रॉफिट, वेल्थ क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये 3 ऑब्जेक्टिव ही हो। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ये तो सिर्फ एक लिस्ट बनाया हुआ है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एवरी बिजनेस विल हैव ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, इज नॉट अ रिटर्न रूल। समझे कि नहीं आप लोग? यस प्लीज, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो। नहीं समझ पड़ रहा यस सर। क्या नहीं समझ पड़ रहा है? सर, एक बार मैं फिर से बोल देना सर। क्या नहीं समझ पड़ रहा है वो जरा बताओ मेरे को। देखो बिजनेस के, तुम मेरे को बोलो, चलो फटाफट लेट्स डू दिस। बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? 2 सर। कौन से? सर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी में कौन से होते हैं? सर, प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन। बराबर है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यस सर। बराबर। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही मेन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब 2 ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जिनको हम क्या नाम से बुलाते हैं? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में मैंने फर्स्ट वर्ड क्या बोला? जी, मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विस। तो क्या लिखोगे? क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? ई। ई मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाँ, अपॉर्चुनिटीज और जनरेशन, ठीक है। टी मतलब क्या बोला? फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। और एस, एस मतलब क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एस मतलब क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, मैं ये बोल रहा था कि आपके बिजनेस के लिए हर एक ऑब्जेक्टिव हो, ऐसा जरूर थोड़ी है। अगर तुम बिजनेस करोगे, क्या तुम्हारे बिजनेस के लिए 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स हो, ऐसा जरूरी है? तुम्हारे बिजनेस के लिए 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स हो, ऐसा जरूरी है? तुम मेरे को बोलो, टेल मी दैट। नो सर। नो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर एक बिजनेस के लिए इसमें से हर एक ऑब्जेक्टिव हो, उसका बिजनेस का पर्पस हो, ऐसा जरूर नहीं है। ये तो सिर्फ हमने एक लिस्ट बनाया। ओके ओके सर। ओके, ठीक है, चलिए 30 सेकेंड्स वी विल डू दिस। ये नाम याद करेंगे हम लोग सब, ये नाम याद करेंगे हम लोग सब, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिर हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, so more than enough time. Everybody is able to remember these.
Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's see how much you are able to remember. Just a second. Huh? Just a second. Let's see how much you are able to remember. ठीक, चलिए, बहुत सुंदरता के साथ हम शुरू करते हैं। हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है वो कितने टाइप के हैं पहले वो बताओ। See, Two types. प्राइमरी Of object. Secondary. Secondary. प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, अब प्राइमरी में हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बताओ कौन से। Profit and wealth प्रॉफिट creation. एंड वेल्थ क्रिएशन, profit and wealth creation. Profit and wealth creation. बराबर है। और सेकेंडरी में हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं। Quality goods and service. कितने हैं टोटल। टोटल कितने पहले वो बोलो। Four. Four. ओके, 4, ठीक है। ये 6 तो टोटल है भाई, यहाँ पे सेकेंडरी में कितने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट बोलिए, फर्स्ट बोलिए क्या है। Quality goods and services. क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए उसके बाद बोलिए नेक्स्ट थिंग। Employment generation. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बाकी सब क्या यहाँ पे मुंह बंद करके बैठने के लिए आए हैं आपके साथ। ये लोग सब जो बोल रहे हैं ये लोग सब गधे हैं बेटा क्या। ये लोग गधे हैं सब। बोलो उसके बाद क्या आएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, Fair trade practice. फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, और लास्ट क्या है, व्हाट इज द लास्ट थिंग। Social Social responsibility. responsibility. Okay, so total this is 4, sorry my mistake, this is 2 and this is 4। यहाँ पे 6 है, बट इसके अलावा देखोगे टेक्स्ट बुक में तो यहाँ पे एक अदर्स बोल के कैटेगरी है, यहाँ पे एक अदर्स बोल के कैटेगरी है। अब एग्जाम में अगर वो नहीं भी लिखोगे देन ऑल्सो इट विल नॉट मेक अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, चले आगे। ये याद रहेगा सबको, ये हेडिंग्स याद रहेंगे सबको, बोलिए। Yes, sir. ये भाई साहब देखो, हेडिंग्स अगर याद नहीं रहेंगे, ठीक है, हेडिंग्स अगर याद नहीं रहेंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हेडिंग्स अगर याद नहीं रहेंगे तो यू विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। ओके, चलिए नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट्स डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में पहले बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में जो मैंने पहले लिखा था सबसे पहले वही चीज पे मैं डिस्कशन करूंगा। ओके, लेट्स डू दिस। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी वांट टू डिस्कस, सॉरी my mistake, I have to mention this, that we are discussing about something called secondary objectives। ठीक है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स टाइम पे रेडी रखना। जो मैं आपको ये पीडीएफ के नोट्स भेज रहा हूँ ये मैं आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं भेज रहा हूँ। ठीक है, दीज पीडीएफ नोट्स वट एवर इज बीन सेंड यू हैव टू राइट, you have to write every day। okay, and most important thing जो मैं बोल रहा हूँ, someday I will call you, because जैसे आपने देखा जैसे आपका ये हुआ था वैसे आपका नोटबुक सबमिशन भी होगा। आप मटेरियल लेने आए थे, वैसे दूसरी बार जब आपको मटेरियल लेने के लिए बुलाएंगे तो आपका नोटबुक सबमिशन भी होगा। तो उस दिन आके आपको नोटबुक सबमिट करना पड़ेगा। उस दिन आप मेरे को बोलोगे सर आई एम इल, आई एम दिस हैज हैपेंड, आई विल नॉट अलाउ, सॉरी टू से। जो टाइम पे जो चीज होना चाहिए वो उस टाइम पे हो जाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, डिस्प्यूट और प्रॉब्लम। ओके, नहीं होगा, सिंपल एंड स्ट्रेट, वी विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन द क्लास। ज्यादा उस पर डिस्कशन करने का मतलब नहीं। ठीक है, बस हम आपको घुसने नहीं देंगे क्लास के अंदर, एंटर ही नहीं होगा। एंटर होंगे तो फिर वी विल पुट यू इन द वेटिंग रूम, दैट्स इट। सिट इन द वेटिंग रूम, एंजॉय। ठीक है, एंजॉय द स्क्रीन, जो ऐसा बोलेगा लेट द होस्ट अलाउ यू टू गेट इनसाइड। ठीक है, ऐसा होता रहेगा, एंजॉय दैट। चलिए, तो होपफुली आप टाइम पे काम कंप्लीट करेंगे। लेट्स डू दिस। व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज रेफर्ड एज, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखते हैं हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज मैं बोलने वाला हूं। मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज मैं बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं एक चीज,
डू यू ऑल एग्री टू दिस दैट, लिसन टू इट, ये स्टेटमेंट्स आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो वो मेरे को बताओ। एवरी बिजनेस, ठीक है, ग्रोज, सॉरी, स्टार्ट्स इन सोसाइटी, ओके, ग्रोज इन सोसाइटी, ठीक है, एंड लास्ट एंड्स इन सोसाइटी। बताइए, डू यू ऑल एग्री टू दिस? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस अगर चालू होता है तो वो सोसाइटी में ही चालू होता है, अगर वो ग्रो भी होता है तो वो सोसाइटी में ही ग्रो होता है, और वो एंड भी होता है तो सोसाइटी में ही एंड होता है। बट सबसे पहले द वर्ड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास इतने सारे महान व्यक्ति हैं जिनको सोसाइटी का मतलब ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं जो सोसाइटी में रहता हूं वैकुंठ सोसाइटी, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सोसाइटी। कोई बता सकता है व्हाट सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट? व्हाट सोसाइटी वी आर समाज। टॉकिंग? हाँ, क्या होता है उसका मतलब, वही तो पूछ रहा हूं मैं। एम आई आस्किंग हिंदी ट्रांसलेशन टू दैट वर्ड? What does that mean? The word society, what does that mean? So the group of people. It is group of people, correct. It is group of people who have their own customs, traditions, practice, language, way of living, way of seeing things. That is what society basically means. That is what society basically means. It means group of people. जिनका अपना एक ट्रेडिशन है, अपना एक कल्चर है, अपना एक वे ऑफ लिविंग है। इसलिए तो आप जो एरिया में रहते हो वो एरिया को भी सोसाइटी बोलते हैं। आप जहां पे रहते हो उसको आप क्या बोलते हो? सोसाइटी। नॉर्मली जो लोग रहते हैं टेनामेंट्स में रहते होंगे, ऐसा बोलते होंगे कि सर ये मेरा सोसाइटी है। आप ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बिकॉज यू आर लिविंग विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल who have their own culture, own tradition, own practice, own thinking, way of looking towards things, सब कुछ है। That is why it is called society. तो आप एक चीज सोचो, अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में ही स्टार्ट होता है, अगर वो ग्रो होता है तो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में ही ग्रो होता है, और वो एंड भी होता है तो वो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में ही एंड होता है। यस और नो? थिंक अबाउट दैट। Can we say, what I'm trying to say is very simple. What I'm trying to say is very simple, that business and society are connected to each other. Tell me that. Business and society are connected to each other. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको ये नहीं लगता बिजनेस एंड सोसाइटी आर कनेक्टेड टू ईच Yes, अदर, के sir. एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है? मैं आपको बताऊं कैसे। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कैसे होता है, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आप मेरे को एक चीज बोलो, आपके बिजनेस में जो लोग काम करते हैं वो लोग किसका पार्ट है? आपके बिजनेस में जो लोग काम करते हैं, लेबरर्स, एम्प्लॉइज, वर्कर, स्टाफ, ये लोग किसका पार्ट है? दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट? Society. सोसाइटी। Society. आपके बिजनेस में से जो गुड्स खरीद रहे हैं, जो आपके डेटर्स है, डेटर्स आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, डेटर्स, वो लोग किसका पार्ट है? बताओ। Society. सोसाइटी। ठीक है, आपके बिजनेस को जो पैसा दे रहा है, मतलब आपके क्रेडिटर्स, वो लोग किसका पार्ट है? Society. Society. बराबर है। आपके बिजनेस में जो आपके पास से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, मतलब आपका गवर्नमेंट, वो किसका पार्ट है? बताओ। सोसाइटी। Society. डोंट यू थिंक कि आपके बिजनेस में जितना भी कुछ हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी? यस और नो? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। हाँ के ना? बताओ मेरे को ये चीज। डू यू ऑल एग्री टू Yes, दिस? sir. यस यस गर्ल्स एंड बॉयज, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या आपको समझ पड़ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस प्लीज। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट मी आस्क यू वन सिंपल थिंग। सोसाइटी आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, आपके लिए मतलब आपके बिजनेस के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो मेरे को बता सकता है क्या? कोई मेरे को बता सकता है क्या क्या कर रहा है? व्हाट द बिजनेस इज डूइंग?
what the business is doing, what the society is doing for the business, sorry, what the society is doing to the business. Yes, बोलिए क्या क्या So they are providing profit to our business. दे आर गिविंग. हाँ सही बात है. आप एक चीज सोचो, आप एक चीज सोचो, अगर सोसाइटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता, आप प्रोडक्ट बनाते, किसको बेचते, किसको बेचते, वो तो चीज सोचो. दे आर गिविंग यू प्रॉफिट, दे आर गिविंग यू प्रॉफिट, दे आर गिविंग यू लोन, दे आर गिविंग यू एम्प्लॉइज, दे आर गिविंग यू डेटर्स, दे आर गिविंग यू क्रेडिटर्स. जो चीज चाहिए आपको सब मिल रहा है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस प्लीज. सोसाइटी Yes, sir. बिजनेस को बहुत कुछ देता है. ठीक है, सोसाइटी बिजनेस को बहुत कुछ देता है. सोसाइटी में ही एक बिजनेस स्टार्ट होता है, उसमें भी वो बिजनेस ग्रो होता है, और उसमें भी वो बिजनेस एंड होता है. देयर इज नो अदर थिंग. आज के दिन में थिंक अबाउट दिस. इफ यू टॉक अबाउट अ बिजनेस व्हिच इज कॉल्ड एप्पल, you talk about a business which is called Microsoft, you talk about a business which is called IBM, why they are so much big? अपने आप बन गए बड़े कि लोगों ने उनका प्रोडक्ट खरीदा, उनको पसंद आया, दूसरों को सजेस्ट किया, इसके लिए बना. बोलो, what is the actual thing? What is the actual thing? Tell me that. अपने आप बन गए क्या बड़े? बोलो, have they grown by itself? No, sir. Do you think that there is huge amount of contribution of the society? Yes or no? Yes, sir. सिर्फ एक ही जन आंसर दे रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? यस सर, सही है. What we are trying to put up over here is very simple. The contribution of society towards your business is endless. The contribution of society to your business is endless. मैं आपको बताऊं एक चीज. Let me draw something. You will understand what I'm trying to say. ध्यान से देखिए. Let's say that we are drawing something like this. पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. आपके बिजनेस को मिलता है एम्प्लॉइज. आपके बिजनेस में कौन होते हैं? एम्प्लॉइज. आपके बिजनेस में कौन होते हैं? डेटर्स. आपके बिजनेस में कौन होते हैं? क्रेडिटर्स. ठीक है. और कौन होता है आपके बिजनेस में? चलो बताओ, आपके बिजनेस में और कौन होता है जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है? कस्टमर इज नथिंग बट योर डेटर. एम्प्लॉइज आपका स्टाफ. क्रेडिटर्स आपको जो पैसा दे रहे हैं वो. आपके बिजनेस में और एक जन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. इफ यू आर एबल टू फिगर आउट, शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स. ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर. शेयर होल्डर्स. आपके बिजनेस में शेयर होल्डर किसका? वापस एक बार वर्ड. व्हाट वाज दैट वर्ड? यस प्लीज. So basically we are having employees. आपके बिजनेस में एम्प्लॉइज है, आपके बिजनेस में डेटर्स है, आपके बिजनेस में क्रेडिटर्स है, आपके बिजनेस में शेयर होल्डर्स है. ये सब लोग किसका पार्ट है? आप सोच के देखो ना. यू थिंक अबाउट दिस एंड देन टेल मी. ये सब लोग किसका पार्ट? दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी. अब तुमको ये नहीं लग रहा है that business and society are very much connected to each other? Are you able to understand that? Business and society are very much connected to each other. Yes or no? Right? ठीक है. मैं आपको एक चीज यहाँ पे और एक चीज समझाता हूँ. Let me explain this word which you have missed. Okay? That word is basically यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट. क्योंकि आपके बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट भी तो कनेक्टेड है भाई साहब. आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो कि नहीं देते? ठीक है. आपका बिजनेस गवर्नमेंट को टैक्स देता है कि नहीं देता है? तो गवर्नमेंट भी आपका बिजनेस के कनेक्टेड है. अंडरस्टैंड दैट. दे आर हैविंग सम इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, दैट वेदर यू आर पेइंग द टैक्स ऑन टाइम और नॉट, दे आर हैविंग दैट इंटरेस्ट. अंडरस्टैंड दैट. दे आर हैविंग दैट इंटरेस्ट. दैट इज व्हाट यू शुड बी एबल टू पिक अप. तो एक चीज समझो, आपके बिजनेस में जितने भी लोग हैं, दे आर बेसिकली कनेक्टेड to the society.
इसलिए ऐसा बोलते हैं दैट अ बिजनेस स्टार्ट्स इन द सोसाइटी, इट ग्रोज इन द सोसाइटी एंड इट एंड्स इन द सोसाइटी। इज दैट थिंग क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये चीज आपको समझ पड़ रहा है? बताइए, फिर हम लोग Yes, आगे sir. बढ़ेंगे। अभी भी Yes, हमने sir. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी डिस्कस नहीं किया है। मैं तो सिर्फ अभी आपको यही बता रहा हूं कि हाउ आर बिजनेस एंड सोसाइटी कनेक्टेड टू ईच अदर। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? यस प्लीज। Yes, sir. ओके, Yes, ठीक sir. है। सो लेट्स पुट एन एंड टू दिस लेक्चर ओवर हियर। Yes, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस बाय 8:20। इसको यहीं पे अभी के लिए खत्म करते हैं। We will meet by 8:24 now. That's an end.